Hello my dear student, I hope that you all are doing good. Today the topic of discussion is types of forces. There are two types of force. The first one is balanced force and the second one is unbalanced force. Okay student, so what do you mean by balanced force and what do you mean by unbalanced force? So let's study. First one is balanced force. If the resultant of all the force acting on a body is zero, if the resultant of all the forces acting on a body is zero, the force are called balanced force. If the resultant of all the force acting on a body is zero, then the force is called balanced force. For take an example, suppose this is an object having mass m, it is lying on the ground surface. Now I am applying a force of 10 Newton from this side, that is about 10 Newton toward left. It is toward left. Now my friend is also exerting a force on this mass and this force is also 10 Newton. So in this condition you see both are 10 Newton force. What is 10? 10 is called magnitude. 10 is called magnitude, and both are, the direction of both the force are opposite in nature. As you know that force is vector quantity, it has both magnitude as well as direction. So student, this 10 is called magnitude, this is called magnitude, okay, and this is the direction. This force is acting toward right. Okay student, so this is balanced force because there is no, the net force acting on a body, resultant means total force. If you have to find the net force, what you have to do, you have to just add up the force. Since it is vector quantity, that's why the net force will be vector sum of two forces, vector sum of two forces. But you see the direction is opposite. This is the vector representation of any physical quantity. If you want to represent any physical quantity in vector form, you have to put arrow over it. So it indicates that F1 is a force and it is vector quantity. Now students, see one thing, the direction is opposite, that's why we have to write the value of F1 is how much? 10 Newton. Okay, so we will write 10, and it is in this direction I have taken positive and this direction I have taken negative, because you know this is x-axis, this is 0. Suppose this is x-axis, this is plus x-axis and this is minus x-axis. Okay, so in this side we are taking, in right side we are taking positive value and in left side we are taking negative value. Now students, see F2 is positive 10 and F1 is negative of 10. So net force is how much? Net force is 0. So this is called balanced force. इस कंडीशन में आप एक चीज देख सकते हो, यहाँ पर सिर्फ दो ही फोर्स लग रहा है. ऐसा जरूरी नहीं है कि हर समय दो ही फोर्स लगे. मान लो इसमें ऐसा भी लग सकता था, एक और फोर्स लगता और ये रखता, मान लो ये होता अगर 7 न्यूटन और ये 3 न्यूटन का होता, तो भी ये बैलेंस फोर्स कहलाता, बिकॉज द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस टुवर्ड लेफ्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द फोर्सेस टुवर्ड राइट साइड. सो यू सी हियर द टोटल सम इज हाउ मच? 7 plus 3 10, here also 10. So this is called balanced force. You copy this student. Now student, some important points are there, you have to remember these points. Okay, these are important points. First one is, if a number of balanced force acting on a stationary body, the body continue to remain in its stationary position. What is the meaning of this? If the number of balanced force acting on a stationary body, suppose this is a stationary body, this is a stationary body, you see this is stationary, it is in the condition of rest. And if a number of balanced force means, number of balanced force means here this is 3 Newton, this is 2 Newton and here it is 5 Newton. So this is total, the sum of total force toward left, acting toward left is 5 Newton. So this is called balanced force. So बैलेंस फोर्स के कारण क्या होगा, अगर किसी भी बॉडी पर बैलेंस फोर्स लगता है तो आप एक बात बिल्कुल याद रखना, बैलेंस फोर्स के कारण वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा. स्टेट को चेंज नहीं करेगा इसका मतलब क्या है?
स्टेट को चेंज नहीं करेगा, इसका मतलब ये है कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, या रेस्ट में था तो रेस्ट में रहेगा। फोर्स तो लग रहा है बट द नेचर ऑफ द फोर्स इज बैलेंस। सो बैलेंस फोर्स डज नॉट क्रिएट एनी मोशन। बैलेंस फोर्स डज नॉट क्रिएट एनी मोशन। ऑलवेज रिमेंबर, बैलेंस फोर्स के कारण मोशन क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ये रेस्ट में था, सो इट विल रिमेन इन द कंडीशन ऑफ रेस्ट। क्लियर स्टूडेंट? नंबर ऑफ बैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन स्टेशनरी बॉडी, द बॉडी कंटिन्यू टू रिमेन इन इट्स स्टेशनरी पोजिशन, मीन्स इट इज इन द कंडीशन ऑफ रेस्ट, दैट्स वाई इट विल रिमेन इन द कंडीशन ऑफ रेस्ट। Okay student, now the second point, you can copy this point. Now the second one, now the second one is student, if a body is moving with a uniform speed, if a body is moving in a uniform speed, and in that condition if balance force acting on that body, so the state of uniform motion will not change. In simple word you can understand, मान लो एक ऐसा व्हीकल है, this is a vehicle, it is moving with 30 km per hour. Okay, it is moving with a 30 km per hour, and the most important thing is, suppose balance force is acting. Balance force is acting means here also 10 Newton, here also 10 Newton. So what you can conclude? This is called balance force. Balance force does not create any, मीन्स इट विल नॉट चेंज द कंडीशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। कहने का मतलब ये है कि 30 की स्पीड से चल रहा था ना ये, तो 30 चेंज नहीं होगा, 30 ही रहने वाला है। मतलब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से चल रही थी तो वो यूनिफॉर्म मोशन से ही चलेगी, वो मतलब 30 से ना ही इंक्रीज होगी ना ही डिक्रीज होगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है और उस पर अगर बैलेंस फोर्स लगता है, बैलेंस फोर्स के कारण उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए हम क्या कहेंगे कि बॉडी विल कंटिन्यू टू मूव इन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर हो गया? इफ अ बॉडी इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन, देन इट विल कंटिन्यू टू मूव इन यूनिफॉर्म मोशन इफ बैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी। क्लियर स्टूडेंट? दिस इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। ओके, अब जरूरी नहीं कि एक ही हुआ, मान लो 2 लगता, दोनों मिला करके 10 हुआ, यहां भी 10 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 30 की स्पीड से चल रहा था इस साइड, तो ये 30 की स्पीड से ही चलेगा इस साइड। क्लियर हो गया स्टूडेंट? नाउ द थर्ड पॉइंट, यू कॉपी दिस पॉइंट। नाउ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग is that balance force can change the shape and size of the body. Balance force can change the shape and size of the body. Suppose a balance force is acting in this object. यहाँ से भी फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, यहाँ से भी 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ठीक है, इस साइड से 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इस साइड से भी 10 न्यूटन इस साइड फोर्स लग रहा है। तो इस पे फोर्स जब ऐसे लगेगा स्टूडेंट, तो आप एक चीज बताओ, ये इसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। द स्टेट ऑफ दिस बॉडी विल नॉट चेंज बट द शेप एंड साइज विल चेंज। ठीक है, इसको अगर हम प्रेस करेंगे तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी। तो बैलेंस फोर्स आप क्या समझ रहे हो? बैलेंस फोर्स क्या करता है? बैलेंस फोर्स याद रखना, बैलेंस फोर्स क्या करता है? शेप एंड साइज इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, बट इट विल नॉट चेंज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मीन्स स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इफ इट इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन देन इट विल मूव along with uniform motion. If it is in the condition of rest, then it will remain in the condition of rest. Okay student, now we will study about unbalanced force. You copy this third one point. Now student, the second type of force is unbalanced force. So what is unbalanced force? Unbalanced force, if the resultant force act on a body is not zero, remember, not zero. If the resultant force acting on a body is not zero, the force is called unbalanced force. If the resultant force acting on a body is not zero, then we say that the resultant force is unbalanced force. Let us understand with an example. Suppose this is an object having mass m, it is lying on the ground. Okay, this is ground. Okay, now there are two forces acting on this object. The first force F1 is acting toward right and it is 10 Newton, and the second force it is 5 Newton which is
acting on this object toward left. This is right and this is left. So you can see there is a difference in force. This is not balanced force, this is called unbalanced force, because the magnitude is not same. Here 10 and here 5, both are different. It is called magnitude. So there is difference in magnitude. Okay student, here 10 Newton and here 5 Newton, and due to this difference the body will accelerate. Where it will accelerate? It will accelerate toward right. The body will accelerate toward right. ये इस साइड मूव करेगा क्योंकि इसकी इफेक्ट को 10 न्यूटन वाली फोर्स को 5 न्यूटन कैंसल कर देगा, एंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज टुवर्ड how much? 10 minus 5, that is 10 minus 5, it is 5 Newton, and it is acting toward right. The 5 Newton force will act toward right. Very important student. ठीक है, तो आप ऐसा देख सकते हो इस 5 न्यूटन फोर्स के कारण बॉडी में एक एक्सेलरेशन होगा. एक्सेलरेशन होगा मीन्स इसकी वेलोसिटी में क्या होगी स्टूडेंट? वेलोसिटी में होगी चेंज. देयर इज ए चेंज इन वेलोसिटी. ठीक है, वेलोसिटी विल चेंज मीन्स इट विल मूव. सो वी कैन से दैट इफ unbalanced force act on a body, it produces motion. Very important. When an unbalanced force act on a body, then we say that then it produces motion in the body. When unbalanced force act on a body, this is unbalanced force here, here 10 Newton and here 5 Newton. So this is unbalanced force, so it will create a motion. Motion means body will move. Body will move means its state will change. पहले ये अगर रेस्ट में था तो ये मोशन में आ जाएगा, अगर ये मोशन में था तो इसकी वेलोसिटी और बढ़ जाएगी क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स एक्ट होने लगा. ठीक है, ये अगर रेस्ट में था तो ये मोशन में आ जाएगा, तो हम क्या कहेंगे? इसकी स्टेट चेंज हो गई. और अगर ये मोशन में रहता तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती, इसकी स्पीड बढ़ जाती क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स आ गया है और एक्सेलरेशन होगा. एक्सेलरेशन होगा मीन्स बॉडी की स्पीड चेंज होगी. स्पीड चेंज होगी मीन्स फोर्स ज़्यादा है इस साइड देखा जाए तो इस साइड स्पीड बढ़ जाएगी. ठीक है स्टूडेंट, तो याद रखना आप, unbalanced force create acceleration. Unbalanced force create acceleration. Now you see student, if unbalanced force act on a body, then it produce motion in the body. If in the state of rest, then it will come in the state of motion. और वो अगर पहले से मोशन में रहेगा तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी. ठीक है स्टूडेंट. हाँ, अगर वो इस डायरेक्शन में मोशन में था और इस साइड नेट फोर्स ज़्यादा लगा तो उसकी स्पीड घट भी जाएगी. ठीक है, स्पीड बढ़ भी सकती है, स्पीड घट भी सकती है. मान लो इस साइड वो मूव कर रहा था और इस साइड एयर ड्रैग ज़्यादा लगने लगा, गाड़ी में एयर का फोर्स लगने लगा. ठीक है, एयर रेजिस्टेंस, तो हम क्या कहेंगे? उसकी स्पीड घट जाएगी. तो नेट फोर्स के डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है. नेट फोर्स के डायरेक्शन में स्पीड बढ़ जाएगी, नेट फोर्स के डायरेक्शन में स्पीड. ठीक है, याद रखना नेट फोर्स की डायरेक्शन. यहाँ पर नेट फोर्स की डायरेक्शन किधर है? देखो 10 न्यूटन 5 न्यूटन, ये बड़ा है ना, इसकी डायरेक्शन किस साइड है? बड़ा कौन है? 10 न्यूटन, इसकी डायरेक्शन इस साइड है. तो इस बॉडी पे नेट फोर्स किस साइड लगेगा? इस साइड लगेगा, ये इस साइड मूव करेगा. ठीक है, लेकिन अगर मान लो दूसरा कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, आप इसको नोट कर लेना. ठीक है, इसको पहले नोट. अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल आप देख लेते हैं. नेक्स्ट नोट 2 है, to move a stationary object we have to push it with a force greater than opposing force of friction. ठीक है स्टूडेंट, आप इसको नोट कर लो, ये वाला 2 पॉइंट, ये पॉइंट मैं समझा रहा हूं आपको, नोट कर लो इसको, इन दोनों को. क्या लिखा है? टू मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट वी हैव टू पुश इट विथ अ फोर्स ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, किसी चीज़ को मूव अगर कराना है स्टूडेंट, ठीक है, देखो मैं समझा रहा हूँ आपको. अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर रखा हुआ, इसको आपको मूव कराना है, ये क्यों रेस्ट में है? आप इधर से फोर्स लगा रहे हो, मान लो आपने लगाया 10 न्यूटन, तो जरूरी नहीं है विद द इफेक्ट ऑफ दिस 10 न्यूटन द बॉडी विल कंटिन्यू टू बी स्टेट ऑफ मोशन. ऐसा नहीं है कि इस 10 न्यूटन फोर्स के कारण बॉडी मोशन में आ जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है. ठीक है, ये डिपेंड करता है कि इस बॉडी पे देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, यहाँ पर इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है. इस फ्रिक्शन फोर्स से अगर अधिक ये फोर्स होगा तो ही ये बॉडी अपनी स्टेट को चेंज करेगा, मीन्स मोशन में आएगा. ये लाइन का वही मतलब है. ठीक है, टू मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मीन्स अ बॉडी इन द कंडीशन ऑफ रेस्ट. याद रखना, स्टेशनरी मीन्स क्या होता है? रेस्ट. इफ अ बॉडी इन द कंडीशन ऑफ रेस्ट एंड यू आर अप्लाइंग ए फोर्स, means you are applying to move, means your intention is to move the object. So you can say that to move a stationary object we have to push it
So here you see we are applying a force. ओके, सो विथ ए फोर्स ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. अगर आपको इसको मोशन में रखना है तो फ्रिक्शन फोर्स जो इस पर लग रहा है, रखा हुआ है, तो इस पर एक अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स कब एक्ट होता है? जब हम फोर्स बाहर से एक्सटर्नल अप्लाई करते हैं. फ्रिक्शन फोर्स अपने आप नहीं लग रहा है, अपने आप लगता है तो ये अपने आप इधर मूव करने लगता नहीं. जब आप फोर्स लगाना स्टार्ट किए तो इस साइड एक फ्रिक्शन फोर्स लगने लगा. कहाँ पर? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में. इस साइड एक फ्रिक्शन फोर्स लगने लगा. एंड ड्यू टू दिस फ्रिक्शन फोर्स, इफ दिस फोर्स इज मोर, देन इट विल मूव टुवर्ड राइट. If this force is less than limiting friction, there is a limiting frictional force value that you will learn in higher section. Limiting frictional force. अगर ये जो फोर्स आप लगा रहे हो, अगर ये लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा होगा तो ये बॉडी इधर मूव कर जाएगा. अगर आपने फोर्स लगाया और इस पर एक लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, उससे कम होगा तो ये बॉडी मूव नहीं करेगा. ये पॉइंट को नोट कर लेना. इफ द अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, if the applied force is greater than the limiting frictional force, then the body will move. If the applied force is less than the limiting frictional force, then the body will not move. वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो आप. ये दोनों पॉइंट हो गया. चलो एक और चीज बताना चाहूंगा स्टूडेंट. देखो, ठीक है, अगर आप एक ग्राउंड पे खड़े हो, ठीक है, ग्राउंड पे नहीं खड़े हो, मतलब ऐसा है कि एक टावर है, आपके घर के छत पे खड़े हो आप, आपके हाथ में एक बॉल है, आपने बॉल को ड्रॉप कर दिया मीन्स व्हाट? ड्रॉप मीन्स व्हाट? यू जस्ट हाथ को ऐसे धीरे से ऐसे करके छोड़ दिया, ऐसे, ठीक है, ऐसे करके मतलब मार्कर को ऐसे छोड़ दिया. तो ये मार्कर कहाँ आएगा? ये मार्कर नीचे आएगा. नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि ध्यान से सुनना, अगर ये बॉल है तो ये नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि इस पे एक नीचे की तरफ अनबैलेंस फोर्स लग रहा है. और यहाँ पर वो अनबैलेंस फोर्स कौन है? कमेंट करके बताना. ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ. अगर ये बॉल है, अगर इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ तो ये नीचे आ रहा है. क्यों आ रहा है? कौन से अनबैलेंस फोर्स के कारण वो आ रहा है? क्योंकि वो मोशन में आया. मोशन में आने के लिए कौन सा फोर्स जरूरी है स्टूडेंट? याद रखना, मोशन में आने के लिए अनबैलेंस फोर्स की ज़रूरत होती है. तो वो अनबैलेंस फोर्स कौन सा है आपको कमेंट करके मुझे बताना है. एंड यू हैव टू ऑल्सो कमेंट द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स. ठीक है, बैलेंस फोर्स का और अनबैलेंस फोर्स का, पहले बैलेंस फोर्स का लिखना 3 पॉइंट और अनबैलेंस फोर्स का 3 पॉइंट लिख करके डिफरेंस कमेंट में मेंशन करना है. ओके स्टूडेंट, चलो ये बैलेंस फोर्स कौन सा अनबैलेंस फोर्स है ये भी आपको बताना है कि ये अनबैलेंस फोर्स कौन सा है जो इस बॉडी पे लग रहा है. ये जो बॉल था ना यहाँ पर, इसके पास मान लो ये बॉल है, इस बॉल पे कौन सा अनबैलेंस फोर्स लग रहा है ताकि ये नीचे आ जा रहा है, क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन हो रही, तो वो अनबैलेंस फोर्स का आपको नाम लिखना है. ठीक है स्टूडेंट. Now, next point is if no unbalanced force of friction or air resistance, then the bicycle would go on moving forever. ठीक है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? अगर कोई अनबैलेंस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लगता है, जैसे आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल है ना, बाईसाइकिल अगर आप चला रहे हो, मान लो, ठीक है, ये बाईसाइकिल अगर है, मान लो, ठीक है, आप चला रहे हो ऐसे, ठीक है, तो ये चलता जब है तो इस पर आपने पैडल कर रहे हो तो आपने एक फोर्स लगाया, आप आगे की तरफ मूव कर रहे हो, ठीक है ना, आप आगे की तरफ ऐसे मूव कर रहे हो. तो अगर इस बॉडी पर फ्रिक्शनल फोर्स, ये जो साइकिल है इस पे अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा, ध्यान से देखो, अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगे, ठीक है, अगर फ्रिक्शनल फोर्स इस पे नहीं लगे और एयर का रेजिस्टेंस भी नहीं हो तो ये साइकिल हमेशा चलता रहेगा. हमें साइकिल क्यों पैडल मारनी पड़ती है बार बार? क्योंकि जब हम साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल जब आगे जा रही है तो साइकिल का जो चक्का है उसका रोड के बीच में कॉन्टैक्ट है एंड देयर इज अ फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द टायर्स between tires and the road. Okay, and due to that friction force there is a retarding force acting. That frictional force is retarding in nature. वो जो frictional force है वो retarding force है. वो क्या करेगा? आप जो muscular force लगा रहे हो आगे बढ़ने के लिए, तो आप आगे जाना चाहते हो, वो पीछे की तरफ, नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा. एयर आपको पुश करता है. अगर वो फ्रिक्शनल फोर्स और वो एयर रेजिस्टेंस को हटा दिया जाए, then you will continue to be in state of motion.
मतलब तुम रुकोगे नहीं, तुम हमेशा चलते जाओगे। हमें साइकिल में बार बार पैडल क्यों मारना पड़ रहा है? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमारी मोशन को रिटार्ड कर देता है। समझ में आया? हमें साइकिल में बार बार क्यों पैडल मारना पड़ रहा है? क्योंकि हम मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है? अपोजिट में यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स इसके मोशन को रिटार्ड कर रहा है। फ्रिक्शन फोर्स का हो या एयर रेजिस्टेंस का हो, एयर भी एक तरह का रेजिस्टेंस है। क्या बोल रहा हूँ? एयर resistance and frictional force. If this will remove, if this force is not exist, then body will continue to be state of motion. ठीक है? frictional force ये हमेशा, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन के डायरेक्शन में, मीन्स जिधर फोर्स लगता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स साइकिल में इस साइड लगेगा। ओके स्टूडेंट, एंड द लास्ट पॉइंट इज इफ यू टॉक ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इट मीन्स यूजुअली अनबैलेंस फोर्स। अगर हम बात करते हैं कि किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो आप ये समझ जाना कि वो फोर्स अनबैलेंस फोर्स है। ठीक है? अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो आप ऐसा मत कंक्लूड कर देना कि इस पे जो फोर्स लग रहा है वो बैलेंस फोर्स है। नहीं, फोर्स लग रहा है इसका मतलब ही क्या है? वो अनबैलेंस फोर्स है। एक और एग्जांपल बताना चाहूँगा स्टूडेंट, जैसे मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसे करके रखा गया है इस पे, ठीक है? ये अपनी जगह में रेस्ट में है क्योंकि इस पे नीचे की तरफ क्या लगता है? अगर इसकी मास m है तो इस पे नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। और ये पानी में तो नहीं रखे हो, ये किस पे रखे हो? ये टेबल पे रखे हो, तो टेबल पे ये टेबल भी इस पे एक फोर्स लगाता है जिसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। नॉर्मल फोर्स, बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन एंड बोथ आर बैलेंस फोर्स। इसलिए ना ही ये नीचे आता है ना ही ये ऊपर जाता है। ठीक है? ये बैलेंस फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स बैलेंस हो गया, इसलिए ये टेबल के ऊपर अगर एक किताब को या किसी भी चीज़ को रखे हो तो वो वहीं पर कोइंसाइड करता है। लेकिन पानी में रखोगे तो वो नीचे चला जाएगा। ठीक है? क्योंकि पानी उसको नॉर्मल सपोर्ट नहीं करता, पानी का नॉर्मल नहीं बनता है, ये सॉलिड का नॉर्मल बनता है। सो दिस इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स एंड ड्यू टू दिस बैलेंस फोर्स द बॉडी विल नॉट मूव, ओनली अनबैलेंस फोर्स विल क्रिएट एक्सेलरेशन। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास we will learn about first law of motion and second law of motion. Okay, Newton's first law of motion and Newton's second law of motion. You copy all this thing.